ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब देव का सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब देव का सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाहो बिखम नदी जाए तरनी से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे सतनाम वाहेगुरु जी कबीर गुर लागा तब जानिया मिटै मोह तन ताप हर्ष सोग ताजै नहीं तब हर आप है आप कबीर गुर लागा तब जानिया मिटै मोह तन ताप हर्ष सोग दाजै नहीं तब हर आप है आप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सजी हुई वडभागी साध संगत सतगुरु जी की अपार बख्शिश के नाल इस पालखड़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। भगत कबीर जी की पावन बाणी सलोकां के रूप में जो है इसकी लड़ीवार विचार असीं सरवण कर रहे हैं। कल असीं सरवण कर रहे थे भगत कबीर जी का पावन उपदेश कि परमेश्वर ने पंज तत्तां नूं इकट्ठियां करके ये मनुखा देही बनाई है। ये थोड़े चिर की खेड है, ज़्यादा चिर की नहीं है। देखण नूं ऐ जापदा है कि मनुख ही सब तो चंगा है, पर अंत इसका खे है, मिट्टी है, फिर इन्हें मिट्टी च मिल जाना। इस तरह ये भी समझाया कि वाहिगुरु जी ने जो ये देही बख्शिश की है सानू, इस देही दे राही असी अपने अंदर हृदय दे गुरु के शब्द का प्रकाश करना है। जिथे ज्ञान का तेज होए
ਅਤੇ ਚੰਦ ਵਰਗੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਤਲਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਯਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਕ। ਸ਼ੇਖ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
घ्यो पिया हुंदा है, लूण पिया हुंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ घट तो घट अंदर कोई बुरा विचार तो नहीं प्रगट होंदा, ना ही ये कोई पाप है। केवल रोटी की खातर जीवां नूं मारना जिहड़ा है ये कहते पाप है। अज बख्शिश कर रहे हैं कबीर गुर लागा तब जानी है मिटे मोह तन ताप। एक तो है गुरु दे बन जाना, गुरु नूं धारण कर लेना। जिवें कोई गुरसिख संगत करता है, संगत तो प्रेरणा होती है, उसका ज्ञान होता है, गुरु शब्द दी चोटां वजदियां हैं कि गुरु वाले बन के ही तेरा भला होना है। नगुरे बंदे की कदे भी गति नहीं होती है, इसलिए गुरु वाला बन जाना। तो इस प्रेरणा दे नाल गुरु वाला बन जाता है। गुरमत अमृत छक के पंजां प्यारे दे कोलों गुरु वाला बनता है। हिंदू मत के जनेऊ पा के गुरु वाला बनता है, ब्राह्मण में गुरु धारण करता है, मुसलमानों ने कलमा पढ़ के इसका गुरु वाला बनता है। ईसाइयां बैपतिस्मा दिंदे हैं, एक नदी का गार्डन नदी है, उस नदी का पानी पिआते हैं उसनों, जिसनों अमृत मनते हैं, वो उसके नाल गुरु वाला बनता है। कहते केवल गुरु वाले बन जाना ही गल नहीं बनती, गुरु के बने हुए का तो निशानी है, ये निशानी है पता उदों लगता है जो गुरु के बन के गुरु के उपदेश कमाउंदियां कमाउंदियां मन और तन के सारे ताप मिट जाते। तीन ताप हैं, गुरु समर्थ है तिन्हां तापां नूं मिटण दे समर्थ है। शरीरक ताप, शरीरक दुख, मानसिक दुख, ते एक वो जिहड़े पिछले चंगे माड़े कर्म किए हैं उन्हां दा जो दुख भोगना पैंदा है, जां अचनचेत जदों कोई घटनावां वापरदियां हैं, भुचाल आ जाता है, जां अजिहा कुछ वापरता है जिस दे नाल सब पासे तबाही हो जाती है। ये एक किताब भी है। कहते गुरु दे नाल मिलिया होया तो उन्होंने समझा जाना चाहिए, जिहदे उत्ते जिहदे मन ते ना खुशी का असर है ना गमी का असर है, हक सोग ते न्यारा हो गया है जो ना खुशी दे विच ज़्यादा खुश ही हुंदा है, ना ही सोग दे हदों ज़्यादा रोंदा। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सबे कहें सोई कौतुकहार। परमेश्वर का नाम लैना, राम राम कहना, ये भी कहते एक भेद है, ये विचारन योग है गल। कहते एक तो राम वो है जिहड़ा सब थाई व्यापिया हुआ है, रमिया हुआ है, जिसने सारी सृष्टि बनाई हुई है, इसकी पालना कर रहा है, इसका नाश करे तो वो राम है। एक वो राम है जिहदियां नकलां बना के ये जिहड़े हैं लीला करते हैं रामचंद्र की, कि वो बंदा बन गया रामचंद्र वर्गा, कोई राम वर्गा बन गया, कोई सीता वर्गी बीबी बन गई, कोई लक्ष्मण वर्गा बन गया। ये जिन्हां दी नकलां करते हैं एक राम वो है। रब दे प्यारे किनूं सिमरते हैं, कहते वो उस राम नूं सिमरते हैं जो दशरथ का पुत्र नहीं है, जो वाहिगुरु परमेश्वर हाथें व्याप्या है। कबीर रामै राम कहो कह बे माहे विवेक, एक अनेक है मिल गया एक समाना एक। कहते उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं राम कहो, और कहन लगे विवेक बुद्धि वरत लो, जी रब ने तुहानूं विवेक बुद्धि दी है उसनूं वरत लो। किते वेख्यो भुलेखे दे विच ना रह जाओ कि वो जिहड़ा राम है
ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। कबीर जा कर सार न सेवी हैं, हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट साखे भूत बसै तन माहे। जिस घर दे विच कदे कोई रब दा नाम नहीं लैंदा ते ना ही किसी रब दे प्यारे दी घर दे विच कोई सेवा करदा चाहो हुंदा है, कोई रब दा प्यारा आ जावे घर दे विच, चलो मौका मिले इसकी सेवा कर लईए, कहंदे ओह घर नहीं हन। ते कर मरहट साखे, मरहट कहते हैं मसाणा, मड़ियां, कबरां। वो समझ लो कि मसाणा दी न्याई हैं घर, उन्होंने घर इंसान नहीं वसते, उन्होंने घर भूत वसे दरमाए, उन्होंने भूत वसते, वो इंसान नहीं हैं जिहड़े उत्थे वसते हैं, उत्थे वो भूत हैं, भाव जिन्हां दी कदे गति नहीं हुंदी, वो आत्मावां हैं जिन्हां दी कदे गति नहीं हुंदी। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल पाया मारिया सतप्रवान। गुरु ने कृपा कर दी मेरे ते, ऐसा शब्द का तीर मारिया। आप पिछले सरवण कर रहे थे, जदों मन जिहड़ा है गुरु के उपदेश के सामने आउंदा है ना साडा, नहीं तो वैसे तो उठदा ही रहिंदा है, कदी किते सामने घट ही आउंदा है। वेखण नूं आपां शरीर करके आप जापदा है कि इत्थे बैठे हाँ, अखां मिटियां हुई हैं, पर अंदर जिहड़ा मनुआ है पता नहीं किसे तरह करता है। जदों ये घुम घम के सामने आ जाता है गुरु, उधरों गुरु का शब्द जिहड़ा है वो सामने होवे ते मनुआ सामने आया, ऐसा वजदा है इसनूं निशाना, ऐसा शेक पैंदा है कि जीवन ही बदल जाता है। कहते हुण तां मैं बोलण जोगा ही नहीं रहेगा, बोलण जो गूंगा हुआ, गूंगा का मतलब हुण मेरे को कोई गलत गल नहीं मूँह निकलती है, बुरा नहीं। पहला की सी, जो मर्जी बोली जाता सी, निंदिया करी जाता सी, होर फिक्के वचन बोलता सी, जिहदे नाल लोकां दे दूजियां दे मन दुखते हैं, अजिहा करता है। हुण तां इस पासियों गूंगा हो गया, पर अजिहे वचन नहीं मूँह निकलते। बावरा कमला, कमला का मतलब बड़ियां चलाकियां चतराइयां पहलां वरतदा सी, वो गुरु के शब्द ने मेरे अंदर ऐसा जिहड़ा छेक कीता, विंध दिता मेरे हृदय नूं। हुण मेरियां अंदर दियां सारियां चलाकियां चतराइयां खत्म हो गई, सारा तर्क वितर्क जिहड़ा खत्म हो गया है। हुण तां बावरा कहते हैं जिसनों बहुतियां चलाकियां चतराई ने आउंदियां, आप कहते सीधा सीधा साधा नहीं बोलना, सीधा साधा कहते अजिही अवस्था मेरी बन गया। बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बोला हो गया गुरु के वचनों के नाल। हुण कन किसी की निंदिया नहीं सुनते, कन गुरबाणी सुन के आनंद माणते हैं। हुण ये भैड़े गीत होर जो गल्लां सुनते हैं, पर ये सारियां गल्लां सुनने तो रुक गए हैं, ना ही इन्हों ये गल्लां चंगियां ही लगदियां करना। आहों ते पिंगल पाया मारिया सतप्रवान, गुरु के बचना रूपी बाण ने मैनूं पैरां तो भी पिंगला कर दिता। भाव हुण मेरियां लत्तां मेरे पैर जिहड़े हैं किसी माड़ी संगत च नहीं जाते, माड़ी थां नहीं जाते। हुण ये पैर भज के गुरु के दर वाल नूं आउंदे हन, संगत वाल नूं आउंदे। यह है गुरु के वचनों का असर। जे आ जीवन के तब्दीली, शरीर तो इदां ही रहिंदा है, शरीर जो संतां दे हैं, ब्रह्म ज्ञानी का शरीर भी इदां दा ही हुंदा है जिद्दां दे आपां तुरे फिरदे हैं। जीवन बदल जाता है, वो इदां जीवन बदलदा है।
कबीर सतगुर सुरमे बाह्या बाण जो एक, लागते ही होए गिर परया पराकरे जे शेख। सूरमे गुरु ने जदों अपने बचन का बाण मारिया, मैनू बचन का बाण देख लो, बचन का बाण मारिया सी सज्जन ठग नूं, किन्ने क लोकां नूं उसने लुक्या, किन्ने को मार के खूह सुट दिता। बचन के बाण ने वो जीवन ही बदल के आ दिता। ये बचन का बाण इहनूं कहते हैं, दूजे का जीवन बदल जाए। गुरु ने बचन का बाण मारिया कौगे राक्षस नूं। बंदे खाण जाण वाला इंसान जिहड़ा है एक नेक इंसान बन गया। महाराज कहते खेती करके खाया कर, पशु ना बंदियां ना खा। जो खेती करके मेहनत करके जो निकले वो आप खाया कर तो नाले दूजिया नूं खवाया कर। इन्हां दे जीवन बदल देना। लागते ही कोई गिर भरिया परा कलेजे शेक। कलेजे ऐसा शेक होया गुरु के बचन का, भाव विन्निया गया हिरदा गगी पिया मैं तां। भाव जिहड़ी मैनूं आ सोझी ही ना पहला कि मैं आ भी करना है, आ भी करना है, आ भी करना है, ओहदा भी फिक्र है, ओहदा भी फिक्र है। ये सारियां ही गल्लां गुरु के बचन ने ऐसा शेक किया कि ये सारियां गल्लां भुल गईयां। हुण जिथे रखा बैकुंठ पताई। हुण तां ये अवस्था ये बन गई, सच्चे पातशाह जिथे भी रखे वही मेरे वास्ते बैकुंठ है, स्वर्ग है। जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे दे। जे सुख देवेगा तां भी तेन याद करांगा, तेरे शुकराने जुड़िया रहांगा। तो जे दुख भी दे देगा तां भी तेनों ध्याना है, तेरे अगे अरदास करनी है। जे भुख दे तो इत्थे ही राजा, दुख भी सुख बनाए। जे भुख्या भी रहना पेगा, किते गरीबी भी आ गई, तो सच्चे पातशाह ये मैं संतोख वाला जीवन जीवांगा, दुख नूं भी मैं सुख करके मनांगा। यह जीवन तरदी ये गुरु के बचन आ। बस गल इन्नी है कि पाठ करदे आं, नितनेम करदे आं, सुखमनी साहिब पढ़दे आं, आसा की वार पढ़दे आं, इत्थे कथा कीर्तन सुनदे आं, करदे आं। जे किते गुरु के बचन का बाण साडे हिरदे नूं वज जावे तां महाराज ने कहा सुरत ते शब्द का मिलाप रखो। सुरती दे ते वजना है बाण, तो जे सुरती हाजिर नहीं है, अब कहते मेरी सुरत मेरा मन किसी होर किते तुरया फिरदा सी, मैनूं तुहाडी गल दी समझ नहीं लगी, दोबारा दसो। फिर वचन का बाण नहीं लगता, सामने होना चाहिए। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगतियों मानी होए गई पाठशाल। निर्मल बूंद आकाश, आकाश चों डिगियां हुई बूंदा मीह का पानी। इत्थे गुरमत दे विच ये निर्मल बूंदा कीर्तन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, गुरबाणी का पाठ हो रहा है, नितनेम हो रहा है, सुन रहे हैं, कथा हो रही है, कथा सुन रहे हैं। ये निर्मल बूंदा जिवें आकाश की बूंद बेकार धरती में डिग पवे, कलरी धरती डिग पवे तो जमीन के विच नहीं रलती है। उदा ही पानी जिहड़ा है, या पानी है जिहड़ा उत्ते जमा रहिंदा है, थले धरती उन्हें चीरती नहीं है, उत्ते पना जा बच जाता है, पानी खलोता रहता है। कलरी धरती वेखो किते जाके इधर मुक्तसर साइड दे उधर कलरी धरती बहुत है, वो कहते एवं बेकार गई। बिल्कुल इसे ही तरह ये अमृत बूंदा जिहड़ियां हैं गुरबाणी दियां जिहड़ियां हैं, गुरु के बचन, गुरु के उपदेश जिहड़े हैं, जिहड़ी बेकार धरती है साडा अंदर ही है, अंदरों असीं बेकार भी हाँ ते चंगे भी हाँ। जे सिर्फ आपां
वो बेकार धरती वालों सिर्फ अपने होंद ही दसण वास्ते गुरु के दर दे उत्ते आउंदे हन कि असीं हाँ, फिर नहीं, फिर तो कलरी धरती वाला हाल होएगा। ये जिहड़ियां बूंदां पैणगियां भी वो एवें जाई जाणगियां। वाहिगुरू बिन संगत ओमानी होई गई पातशाह। जिवें किसी तप की भट्ठी दे उत्ते डिग पवे, उत्तों आकाश का मींह जिहड़ा पवे है वो उत्थे ही खत्म हो जांदियां। इस तरह ही विकारां नाल भरे हुए जिहड़े मन हन, विकारां नाल भरे हुए जिहड़े हिरदे हन, जिन्हां दी सोचनी ही इंसानां दी बुरी है, उत्थे कथा कीर्तन का पाठ का असर नहीं होता। जिवें आकाश दीयां बूंदां जिहड़ियां हन वो अजाई जांदियां। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए, नाम निर्वारी जाए। हुण दूसरा पासा, ये निर्मल बूंदां आकाश दीयां, सियाणा किसान की करता है, वटां उच्चियां कर लैंदा है। जिन्नी क लोड़ है ना पानी की उन्होंने खेत दे विच, वटां उच्चियां करके वो पानी नूं उहदे च रोक लैंदा है। दूजे साडे वर्गे सुत्ते रहिंदे हन घर, वो फिर गां निकल जाता है, नीवियां थां पानी निकल जाता है, खाली तो खाली रह जाता है। इत्थे उस नरम भूमि तो है जिहड़े संगत करदियां नितनेमी हन, अमृत वेले संभाल करते हैं और ये सत्संग के प्यार जुड़े रहते हैं, सेवा सिमरन की भावना है। वो समझ लो वो धरती है जिहदे पईयां होईयां बूंदां अजाई नहीं जांदियां। कहते किन्ने भी सियाणे अनक सियाणे पच गए, नाम निर्वारी जाए। जिन्ने मर्जी सियाणे बन के लोग उहदे उस खेत दे विचों उन्हां बूंदां नूं कढण दा यतन करे, वो नहीं निकलदे, बिल्कुल नहीं निकलदे। ये इतिहास है साडा, इतिहास जिहड़ा सारा जदों कहंदे छड्डदे सिੱਖੀ मुसलमान बन जा, तेरी खोपरी नहीं उतारांगे, कहंदा ना खोपरी उतार बंद कटांगे, कहना कट जाओ, सिੱਖੀ नहीं छड़ सकता। तेन देग विच उबाल देंगे, देखो आ वा जमीन छड्डी नहीं। वो सियाणे बनते हैं ना अपना, इत्थों तक छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह कहते तुहानूं बहुत कुछ देंगे, असीं नवाब बना देंगे। कहते नहीं, लोड़ नहीं सानूं। पूरा जोर ला लिया, बच्चियां नूं भी नहीं अपने मार्ग तो पासे कर सके, नाम निर्वारी जाए। हुण कोई नहीं, जिन्ने मर्जी सियाणे जिन्ने मर्जी जुर्म करने वाले लोग आ जाण, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कबीर हज काबे हों जाए था, आगे मिलया खुदाए, साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझे किन फरमाई गाए। कहते कि हुण हज ते जाने वाले, यात्रा करने वाले जिहड़े, यात्रा नूं बड़ी मानता दी जाती है। सिद्ध गोष्ठ बाणी दे विच सिद्धा ने कहा है गुरु नानक पातशाह नूं, तीर्थ नहाइए सुख बल पाइए, मैल न लागे गाई। गोरख लोहा रीपा बोले जोग जुग विद साईं। गोरख का चेला लोहा रीपा गुरु नानक पातशाह नूं कहंदा कि असीं देखो तीर्थां ते जांदे हां, इशनान करते हैं, पापां दी मैल रह जांदी है। सो यात्रा जिहदा मतलब यात्रा है, उत्थे बैठे हुए हैं, जिथे जाओगे तुसीं उत्थे तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये सारे साडे वास्ते भी है। ये मुसलमानों का इशारा किया हज दे तो हो जाते हैं। काबा मंदिर है, मक्का शहर है, मक्के दे विच काबा मंदिर है। इस मंदिर नूं रब दा घर मुसलमान मानते हैं। जिथे भी दुनिया में कोई मुसलमान है वो काबे वाल मुँह करके ही नमाज पढ़ेगा, किते भी है काबे वाल पैर करके नहीं सौंदे मुसलमान। ये उन्होंने मन च सत्कार है। सो कहते मैं भी चले गया हज नूं, मतलब समझाने वास्ते कह रहा। अगे खुदा मिल गया, मैनूं रब मिल गया, साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझे किन फरमाई गाए। साहब सिंह जी ने ये अर्थ गां किए हैं, गां अर्थ नहीं हैं। अगला श्लोक होर
स्पष्ट करते हैं। कहते रब मेरे नाल झगड़ पिया भी मैनू ये दस तैनू किन्ने कहा सीगा कि मैं इत्थे हाँ। गायदार कहा तैनू किसने कह दिता कि मैं इत्थे मक्के दे विच बैठा हाँ, मैं काबे मंदिर दे विच हाँ। मतलब कि तू भुलिया होया है, तैनू लोगों ने भुलेखे पाया है कि मैं इत्थे मक्के च बैठा। और गुरु नानक पातशाह ने जाके भी सिद्ध कर दिता कि रब इत्थे ही नहीं है, रब तो हर थां ही सर्वव्यापक है। कबीर हज काबे हुए गया कितनी बार कबीर साईं मुझ से साईं मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कहने कई बार मतलब इशारा बुझिया है कबीर जी उत्थे नहीं जाते। कहते कई बार मक्के की यात्रा की काबे दे विच जाके उस संगे अशवद एक उत्थे पत्थर है मक्के विच की है कुछ नहीं है, एक पत्थर है काले रंग का। कहते कि वो हजरत मूसा ने भगती की सी बैठ के, पहला पैगंबर उन्होंने मूसा मानिया जाता है। सो वो उसनों पवित्र मानते हैं। हर एक नूं अंदर नहीं जानते, मुसलमान ही जाते हैं। उन्होंने उत्ते भी कई पाबंदियां फिर वो जाके उस पत्थर को चुमते हैं, बस इन्ना करके वापस आए। कबीर जी कहते मैं कई बार गया साईं मुझ में क्या कथा मुखा ना बोले पीर। कहते हे मालिक हे अल्लाह मेरे केड़ा कसूर है, मेरे केड़ी गलती हुई है मेरे को, जां मेरे केड़ी कमजोरी है कि मेरे नाल तू बोलता ही नहीं। इहदा मतलब यह है कि तू आ ही गलत थां ते रहे, तेन पता ही नहीं रब कित्थे है। गुरमत दे विच प्रभु परमेश्वर नूं घट घट दे विच व्याप रहा भगत क्या है। सर्वभूता अवतारा सर्व नयना पेखनार सगल समग्री जाका तना। ये सारी समग्री ही उसका तन है जो कुछ आप वेख रहे हैं। हर थां ही हाजर नाजर, जिथे याद करो जिथे हर आराधिया जिथे हर मिल, जिथे याद करो उथे हाजर है। वाहिगुरू कबीर जी जो मारे हैं जोड़ कर कहते हैं जो हलाल दफ्तर दे जो काट कर होएगा कौन हलाल। हुण आ गई इत्थे आ गई जीवां नूं मारन वाली गल, उत्थे हज दे उत्ते जाण वाले नहीं गल सी। कहते जिहड़े जीआं नूं मारते हैं ते कहते हलाल कीता सी हलाल कीता खा रहे हैं। खाना बली रब दे नां दे देनी, बकरीद वाले दिन बकरे बकरियां बड़े मारते हैं ये लोग, मार के फिर सारे खाते हैं, रज के खाते हैं। हिंदू लोग भी जोड़े हैं ये भी देवियां देवत्या के नाम से बलियां देते हैं और झुकियां तक की बली दे देते हैं, वो भी मार मार खा लेते, वो भी मांस खा लेते हैं। वाहिगुरू वाहिगुरू कहते हलाल है पावे चंगी गल है, रब नूं चंगी गल है पावे ना साडे पाप बख्शे जाने। दफ्तर ले जब कड़ के होएगा कौन हवाल। जदों वाहिगुरू ने तेरे अगे लेखा जोखा रखा ना तेरे कीते हुए कर्मां दा, वेखी की हाल हुंदा तेरा। फिर तेन पता लगा जोड़े खाते हैं ना जीव तेरे सामने होणगे, फिर तेन पता लगा। कबीर वाह जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, दफ्तर लिखा नीसा मार मोहे मोहे खाए। ये धक्का करना है ना जीवां दे जवान के स्वाद वास्ते, यदा हिसाब किताब खुदा ने लेना है, सारे तो लेना है। मुसलमानों तो ही नहीं, किसी भी जब धर्म के नाम से कुछ करता है। हुण उदा जीवां का आहार जी बनाया है रब ने, लेकिन उन्होंने जीवां की खुराक होर कोई है नहीं है। पर इंसान के वास्ते बहुत कुछ वाहिगुरू ने बनाया है, एक जीवां नूं खावे। सो कहते कि देख लवी जदों हिसाब किताब तेरे सामने निकलिया ना तो तेनों ऐस जुल्म के बदले मार पैनी मूँह देते, बहुत मार पेगी। सतगुरु जी कृपा कर जो पावन उपदेश इन्हां सलोकां दे राही आप सुन रहे हैं, सावधान होइए। जे किते अजिहा किते हो रहा है देखो
दो चीज़ों को गुरमति ने वर्जित किया, एक शराब एक मांस। जे सिमरन करना है, जे आनंद लेना है गुरु की बाणी का, तो फिर दो चीज़ों तो दूर रहना। नशा कोई नहीं खाना, किसी किस्म का कोई नशा नहीं खाना, कल शराब का नहीं, और भी कोई नशा नहीं खाना। नशा केवल गुरु के शब्द का रखना है, नाम का नशा रखना है। दूसरा, जवान के स्वाद वास्ते जीवन मार के खाना जरा है, एक कबीर जी ने स्पष्ट कर दिता है। वो वैसे साढ़े जो लोग कहते हैं झटका खा लेना चाहिए है, उन्होंने अपनी मत है, गुरु ग्रंथ साहब की मत नहीं है, उन्होंने अपनी मत बनाई। वो चलो जो वो खाते हैं, आप गुरु निहंग सिंघां दे पूरे डाले खाते हैं, छकते हैं। सो एक वखरा विषय है, इस गल ते बहस नहीं करनी अपन लोड़, ते ना बहस के ना का कोई हिसाब किताब ही होना। आप गुरु के वचनों अनुसार चलना है, जो गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सानूं कहते ये अनुसार चलना है। सानूं भावें 1000 बंदा आके कह दे देखो जी रहत महाराज लिखा हुआ है, जां वो फलाने कहते हैं, असीं वो गल नहीं मननी, असीं वो गल मननी है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सानूं कही है। जो 10वें पातशाह का हुक्म है, सब सिखों का हुक्म है, अपना गुरु है, बंदे थोड़े साडे गुरु हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भुलां चुकना दिखे मां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।